پاکستان کے آرمی چیفز کے دلچسپ حقائق، کوئی فقط 2.5 ماہ عہدے پر رہا تو کوئی فوجی سربراہ بنتے ہی گرفتار ہوا۔ پاکستان میں فوج کے سربراہ کی تعیناتی کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو فوج کے سربراہان کی تقرریاں اور مدت ملازمت اکثر و بیشتر تنازعات سے گھری رہی ہے۔ پاکستان فوج کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف اور فیلڈ مارشل ایوب خان، جنہوں نے پاکستان کا پہلا مارشل لا بھی لگایا، سے لے کر جنرل عاصم منیر تک، تقریباً تمام سپہ سالار کسی نہ کسی تنازع میں ضرور الجھے ہیں۔ حکومت اور وزرائے اعظم سے ڈھکے چھپے اختلافات ہوں یا پھر براہ راست مداخلت، فوج کے سربراہان کا نام عسکری امور کے ساتھ ساتھ سیاست اور حکومت سے بھی جڑا رہا۔ اس تحریر میں پاکستان کی تاریخ سے ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کو پیش کیا گیا ہے، جن میں ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے حادثے سے لے کر ایک ایسے فوجی سربراہ کا تذکرہ بھی موجود ہے جو جنرل نہیں بنے لیکن چیف آف آرمی سٹاف بن گئے، وہ حادثہ جس نے ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو پیش آنے والا حادثہ تو عموماً سب ہی کو یاد ہے، لیکن بہاولپور میں پیش آئے اس حادثے سے تقریباً 40 سال قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو چکا ہے۔ 12 دسمبر 1950 کو لاہور سے اڑان بھرنے والا ایک نجی طیارہ اپنی منزل کراچی سے تقریباً 65 میل دور گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے میں سوار 26 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ تاہم ان 26 افراد میں 2 ایسی شخصیات شامل تھیں جن کی موت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ میجر جنرل محمد افتخار خان اور بریگیڈیئر شیر خان تھے۔ میجر جنرل افتخار سروس کے اعتبار سے ایوب خان سے 1 سال جونیئر تھے، لیکن ان کو پہلے ترقی ملی اور لاہور میں ڈویژن کی کمان سونپی گئی۔ متعدد مصنفین کے مطابق میجر جنرل افتخار پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف کے عہدے کے لیے منتخب کر لیے گئے تھے اور ان کو اسی لیے برطانیہ میں امپیریل ڈیفنس کورس کے لیے بھیجوایا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ حادثے میں ہلاک ہونے والے بریگیڈیئر شیر خان نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر تنازع پر پہلی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اور فوج کے بہترین افسرز میں شمار ہوتے تھے۔ خود ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ جنرل افتخار ایک اچھے افسر تھے اور یہ عام تاثر تھا کہ برٹش ان کی حمایت کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے کمانڈر ان چیف بنتے، لیکن ان کے لیے مشکلات ہوتی۔ ایوب خان کے مطابق وہ غصے کے تیز تھے۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراسڈ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ بعد میں میجر جنرل بننے والے شیر علی خان پٹوڈی کے مطابق جس دن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے میجر جنرل افتخار کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے متعلق آگاہ کیا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ میجر جنرل شیر علی خان پٹوڈی کے مطابق ایوب خان نے اس فیصلے کے بعد ان سے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ جنرل افتخار سے ملنا چاہیں گے کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف بننے والے ہیں۔ شیر علی خان کے مطابق جنرل افتخار خاموش طبیعت رکھنے والے لیکن بلا کے ذہین تھے، جو اس فیصلے کے بعد خوش ہونے کے بجائے پریشان دکھائی دیے۔ تاہم طیارے حادثے میں ان کی ہلاکت کے بعد ایوب خان کمانڈر ان چیف کے عہدے پر تعینات ہوئے اور آخرکار ملک کی صدارت کی کرسی تک پہنچ گئے، اور ان کے دور حکومت کے دوران 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ جب فوجی افسران نے کمانڈر ان چیف کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ میں یحییٰ خان ایک متنازع شخصیت رہے ہیں۔ ان کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور انڈیا سے 1971 کی جنگ میں شکست کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں پاکستان فوج کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے بعد یحییٰ خان بدستور ملک کے صدر اور فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ کراسڈ سورڈز میں شجاع نواز لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو جب یہ خبر پھیلی کہ یحییٰ خان ایک نیا دستور لانے کی تیاری کر رہے ہیں تو فوجی افسران میں شدید رد عمل ہوا۔ ان افسران میں گجرانوالہ میں موجود بریگیڈیئر فرخ بخت علی بھی شامل تھے۔ کنڈکٹ ان بیکمنگ میں فرخ بخت علی لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو میں اپنا استعفیٰ لکھ چکا تھا، لیکن جب 18 دسمبر کو ہمیں علم ہوا کہ یحییٰ خان کا مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تو ہم حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق ان سے متعدد دیگر افسران نے بھی رابطہ کیا تو میں نے اپنے ڈویژن کمانڈر کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ GHQ میں اعلیٰ افسران کو یہ پیغام بھجوائیں کہ یحییٰ خان کو مستعفی ہو کر اقتدار سول سیاست دانوں کو منتقل کر دینا چاہیے۔ اگلے دن یعنی 19 دسمبر کو بریگیڈیئر FB علی نے 2 افسران کو GHQ بھجوایا کہ یحییٰ خان اور ان کے قریبی جنرل جو اس شکست کے ذمہ دار ہیں
रात 8 बजे तक मुस्ताफ़ी हो जाएं वरना नताइज के लिए तैयार हो जाएं। अमलन ये फौज के अंदर एक तरह की बगावत थी। इस पैगाम के बाद शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि फौज की आला कमान में खलबली मच गई और यहिया खान के करीबी साथी और मेजर जनरल मिठा ने SSG से राब्ता किया ताकि इस्लामाबाद की जानिब किसी किस्म के फौजी काफिलों को आने से रोका जा सके। शुजा नवाज लिखते हैं कि मेजर जनरल मिठा ने ब्रिगेडियर FB अली को फ़ोन किया और पूछा कि क्या यहिया खान की जगह जनरल अब्दुल हमीद खान बतौर कमांडर इन चीफ कबूल होंगे, जिस पर जवाब नफ़ी में दिया गया। शुजा नवाज के मुताबिक अगले दिन जनरल हमीद ने GHQ में मौजूद अफसरान को इकट्ठा किया ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया वो यहिया खान की जगह काबिल कबूल हो सकते हैं या नहीं। ताहम फौजी अफसरान ने मौजूदा क़ियादत पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हुए वाज़े किया कि उनको भी जाना होगा। यहिया खान को जब सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने मुतअद्दिद अफसरान से खुद भी राब्ता किया। ताहम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल गिल हसन और एयर फोर्स चीफ ने उनको इस्तीफ़ा देने पर कायल किया और यूं पाकिस्तान फौज के 5वीं कमांडर इन चीफ और मुल्क के तीसरे सदर के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। शुजा नवाज लिखते हैं कि शायद ये पहला मौका था जब फौज के जूनियर अफसरान ने क़ियादत को मजबूर किया कि वो मुस्ताफ़ी हों। शुजा नवाज क्रॉसिड सोर्स में लिखते हैं कि यहिया खान ने बाद में एक मुकदमे के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में अपने जवाब में दावा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल गिल हसन खान और फ़िज़ाइया के सरबराह रहीम खान ने उनके खिलाफ इस वक्त साजिश तैयार की जब उन तीनों को इंडिया से जंग के दौरान खुद उन्होंने चीन भिजवाया था। इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिगेडियर FB अली पर चंद साल बाद भुट्टो की सिविल हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की साजिश का मुकदमा चला और कोर्ट मार्शल करने वाले बोर्ड के सरबराह मुस्तकबिल में आर्मी चीफ बनने वाले जनरल ज़ियाउल हक थे। चंद साल बाद ब्रिगेडियर FB अली कोट लखपत जेल में कैद तन्हाई की सजा काट रहे थे जब उनके मुताबिक उनसे 100 गज के फासले पर एक और सेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल केस में कैद कर दिया गया था। जब एक लेफ्टिनेंट जनरल को फौज का सरबराह बनाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मामूली हालात में पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके थे और फौज को अवामी गुस्से का सामना था। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने का एजाज़ भी मिला। इन गैर मामूली हालात में उन्होंने गैर मामूली फैसले किए, जिनमें से एक ये भी था कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में फौज का सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल को बनाया गया। ये गोल हसन खान थे जिन्होंने भुट्टो के इक़्तिदार संभालने के अमल में अहम किरदार अदा किया था। गोल हसन खान पाकिस्तान फौज के आखिरी कमांडर इन चीफ थे, जिसकी वजह यह थी कि इस ओहदे का नाम बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया। ताहम यह मामला भी मुतनाज़ा है कि उनकी बतौर सिपा सालार तैनाती लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ क्यों हुई। गोल हसन खान अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि जब मुझे इस ओहदे की पेशकश की गई तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने ये शर्त रखी कि मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर ही कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ताहम वो लिखते हैं कि इस वक्त मुझे काफ़ी हैरत हुई जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने गोल हसन खान को कमांडर इन चीफ के ओहदे पर वक्ती तौर पर तरक्की दी है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क ऐसी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गोल हसन खान के मुताबिक जब उन्होंने बाद में भुट्टो से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सियासत को नहीं समझते। शायद भुट्टो और उनके पहले तैनात करदा फौजी सरबराह के दरमियान यहीं से गलत फहमियां पैदा हो गई थीं। गोल हसन खान लिखते हैं कि उनकी दूसरी शर्त यह थी कि फौजी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन भुट्टो इस पर मुत्तफिक होने के बावजूद ज्यादा देर कायम नहीं रहे। उनका दावा है कि भुट्टो फौजी अफसरान की तरक्की के बोर्ड में बैठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ ही अरसे बाद मजीद इख्तिलाफात के बाद एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गोल हसन खान और एयर चीफ रहीम खान को ईवान सदर बुलाकर मतला किया कि उनको ओहदे से सुबुकदोश किया जा रहा है, जहां उनसे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए। यूं वो न सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ फौज के सरबराह बनने वाले पहले अफसर ही नहीं, बल्कि किसी सिविल हुक्मरान की जानिब से कब्ल अज वक्त फारिग कर दिए जाने वाले पहले फौजी सरबराह भी बने। गोल हसन खान को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की फौज के मुख्तसर तरीन मुद्दत तक रहने वाले सरबराह थे, जिनका दौर सिर्फ 2.5 माह पर मुहित था। सदर और वजीर आज़म को घर भेजने वाले आर्मी चीफ जिन्होंने एक्सटेंशन को ठुकरा दिया था।
गोल हसन के बाद पाकिस्तान फौज की मुख्तसर वक्त के लिए क़यादत करने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ थे, जिनका 8 जनवरी 1993 को दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हुआ तो उन्हें आर्मी चीफ बने हुए सिर्फ 1 साल और 5 महीने हुए थे। ये मुल्क में सियासी कशमकश का दौर था और फौज की बराह रास्त मुदाखलत की अफवाहें उरूज पर थीं। नवाज शरीफ वजीर आज़म और गुलाम इसहाक खान मुल्क के सदर थे। शुजा नवाज, जो जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि गुलाम इसहाक खान लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहीद काकड़ क्वेटा कोर की कमान कर रहे थे। ब्रायन कलफुल्ली अपनी किताब पाकिस्तान आर्मी ए हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड इंसरिकेशंस में लिखते हैं कि अब्दुल वहीद काकड़ के ख्याल में ये इनकी आखिरी पोस्टिंग थी और वो रिटायर होकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ताहम सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात के बाद फौज की सरबराही का कुरा उनके नाम निकला। शुजा नवाज करासिड सुअर्स में लिखते हैं कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ पर मार्शल लॉ लगाने का काफ़ी दबाव था, लेकिन वो मुल्क में सियासी कशीदगी का सियासी हल तलाश करना चाहते थे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त सदर ममलकत के पास आइन की 8वीं तरमीम के तहत असेंबली को तोड़ने का इख्तियार मौजूद था, जिसे गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर भुट्टो की पहली वज़ारत उज़्मा को ख़त्म करने के लिए एक बार इस्तेमाल कर चुके थे। जब 1993 में उन्होंने इस इख्तियार को दूसरी बार नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हुई। शुजा नवाज लिखते हैं कि इस अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए रेंजर्स का सहारा लेने की कोशिश की तो आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद ने इसका रास्ता रोक दिया। शुजा नवाज के मुताबिक जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आज़म नवाज शरीफ को कायल किया कि वो दोनों मुस्ताफ़ी हो जाएं ताकि नए इंतखाबात करवाए जा सकें, जिनके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत कायम हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल वहीद काकड़ के बारे में कहा कि उनको सियासत में घसीटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी कोई मुदाखलत नहीं की। अब्दुल वहीद काकड़ गालिबन वाहिद सिपा सालार थे जिनको एक वजीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने 3 साल की मुद्दत पूरी होने पर यह ओहदा छोड़ दिया। वो हादसा जिसके बाइस असलम बेग आर्मी चीफ बने। ये 17 अगस्त का 1988 दिन था जब पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असलम बेग तैयारे में बैठे फिजा से एक जाए हादसा का दौरा कर रहे थे। अपनी सवाने हयात इक़्तिदार की मजबूरियां में असलम बेग लिखते हैं कि सामने धुआं नजर आ रहा था, अगले ही लम्हे हमारा तैयारा इसके नजदीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1C-130 क्रैश हो गया है और कोई नजर नहीं आ रहा। इस किस्म के हालात में मुझे अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए मैंने पायलट को कहा कि सीधे रावलपिंडी चल लो। ये वो मकाम था जहां कुछ देर पहले वो C-130 तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें दीगर अफराद के हमरा सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक भी सवार थे। असलम बेग बताते हैं, GHQ राब्ता किया तो वहां हालात पुरसुकून थे। हुक्म दिया फॉर्मेशंस को रीड अलर्ट कर दो और अगले हुक्म का इंतजार करो। मेरे साथ जहाज में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फैसला करना था कि इक़्तिदार अपने हाथ में लेना है या इसे देना है जिसकी अमानत है। और फिर जियाउल हक की तैयारा हादसे में हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बन गए। जनरल जिया की हलाकत और असलम बेग के आर्मी चीफ बनने के 3 घंटों के अंदर आइन बहाल हो चुका था। इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई का आगाज हुआ जिसे 90 दिनों में मुकम्मल होना था। अगरचे जनरल असलम बेग पर मार्शल लॉ लगाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक इंतखाबात करवाए। लेकिन इन्हीं इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ मुतनाज़ा सियासी महाज IJI की तश्कील और उसके नतीजे में नवाज शरीफ के बरसरे इक़्तिदार आने पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। वो जनरल जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1999 के अवाखिर में 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने एक दिन अचानक इस वक्त के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जिया उद्दीन को वजीर आज़म हाउस बुलाकर बताया कि उनको आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया गया है। उनको नवाज शरीफ ने इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ ISI चीफ बनवाया था और ये तासुर पाया जाता था कि वो नवाज शरीफ से काफ़ी करीब है।
تاہم خود جنرل ضیاء الدین کے مطابق ان کی نواز شریف سے پہلی ملاقات اسی وقت ہوئی تھی جب ان کا ISI چیف بنتے وقت انٹرویو ہوا۔ ان کے دعوے اپنی جگہ، لیکن 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر فوج کے رد عمل نے جمہوریت کی بساط کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ ایک جانب وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری کے یونیفارم سے بیجز اتروا کر لگائے گئے، تو ادھر اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئے، جو خود اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بھی نواز شریف سے اختلاف کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل مستعفی ہو چکے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔